Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning platform. In this video lecture, we are going to discuss the clerk examination paper which was held in the year 2018 by the IBPS. So we are proceeding towards a series जहाँ पे हम जितने भी previous year question papers हुए हैं उन सबको discuss कर रहे हैं. And this video is all about discussing the paper of 2018. So हम लोग देखेंगे कि pre के अंदर आपका exam pattern किस तरह से रहता है for respective 3 subjects. मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, क्या क्या इनके क्वेश्चंस आते हैं एंड किस तरह से आपको इनको अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट. लाइक यू ऑल नो कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी सेक्शंस के अंदर मिला के उन सब के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है. सो अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स अवार्ड किया जाता है, बट अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है जहाँ पे 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है, राइट. सो मेक श्योर कि आप प्री के एग्जामिनेशन के लिए जब प्रिपेयर करें तो स्पीड होनी चाहिए, बट अलॉन्ग विद द स्पीड व्हाट एल्स दैट मैटर्स इज द एक्यूरेसी. आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो ही आप प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन दैट इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 30 मार्क्स एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो उसके अंदर सेक्शनल टाइम रहता है 20 मिनट्स का. ओके, सो इंग्लिश के अंदर यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है जहाँ पे आपको पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है. पहले हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एंड देन हम लोग समझेंगे कि ऑथर इस पैसेज के थ्रू क्या कहना चाहता है, ठीक है. सो विल गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट. सबसे पहले यहाँ पे दिया है व्हाई डज द ऑथर सपोर्ट द आइडिया ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम. उसके बाद है हाउ डज वर्किंग थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन इंश्योर्स द पर्सनल वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. What does the author means by the phrase no longer is remote work about working on a beach? Then आपको optimize से similar meaning बताना है. So ये सारे questions है जो कि आपको आंसर करने हैं. Okay, so read the given passage carefully and answer the question. सबसे पहले दिया है a decade ago working from home may have seemed like a distant dream. ठीक है, इससे पहले जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था, कोरोना वायरस नहीं था, तब तक वर्किंग फ्रॉम होम बहुत ही रेयर था, स्पेशली इंडिया के अंदर बहुत ही अनकॉमन था. But once work from home start हुआ, today it's the future of the work. With millennials, the driving force behind this shift in the workforce, remote work was dismissed as another annoying millennial trait. As more companies adopt the telecommuting practices, the benefits are very clear. No longer is remote work about working on a beach. It's a complete design in how we approach the way we work. ठीक है, so this is most important. Here are the benefits and the reason why to embrace the telecommuting and remote work. It is estimated that employees in the US lose $1.8 trillion in a year in productivity from distractions like water cooler, gossips to excessive commuting, health problems and more. Workers are finding it harder than ever to hit the maximum productivity in the traditional office work environment. What is the solution? Telecommuting? According to the State of the Work Productivity Report, 65% of the full-time employees think a remote work schedule would increase the productivity. This is backed up by more than 2/3 of the manager reporting an increase in the overall productivity from their remote employees. Why do telecommuters find the extra boost of productivity? With none of the distractions from the traditional office setting, telecommuting drivers up employee efficiency. It allows the worker to retain more of their time in the day and adjust to their personal, mental and the physical well-being need to optimize the productivity. Remoting something is as simple as the 20-minute commute to work can make all world of difference. If you are ill, telecommuting allow one to recover faster without being forced to be in the office. It also improves the impact of our overall health. As a diabetic, health is the number one priority. If our health is not in good condition, then it is inevitable that our productivity will also decline. The average person in the UK spend about 60 to 80 minutes getting to and from work. With the drive to reduce our carbon footprint, telecommuting is an excellent way for our company to go green and improve our employees' general well-being. In a report which is published by the Royal Society for the Public Health in the UK, it is found that 55% of the people felt more stressed as a result of their commute. Snacking habit also increased, and with less free time available, the report also found that the workers are leading less active and healthy lifestyle. In a 2014 study by PGI, a leading provider of software services, it found that 80% of the remote worker reported higher morale, 82% said it helped in lower their stress level, and 69% reported lower absenteeism. ठीक है, सो यहाँ पे बताया गया है कि रिमोट वर्किंग और जो टेलीकम्यूटिंग है उन दोनों के क्या क्या डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस है. सो विल कम बैक टू द क्वेश्चंस.
सबसे पहला है व्हाई डज द ऑथर सपोर्ट द आइडिया ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। ऑथर क्यों सपोर्ट करता है? बिकॉज इट अलाउ द ओल्डर जनरेशन टू रिमेन इन द वर्क फोर्स। पर ओल्डर जनरेशन की तो कोई बात नहीं हुई है। इट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स एंड इट सेव्स देम फ्रॉम सोशल डिस्ट्रैक्शन। तो ये मेंशन किया गया है। इट कट डाउन द कंपेंसेशन कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। कॉस्ट की भी कहीं बात नहीं हुई है। सो द राइट आंसर इज ओनली बी। नेक्स्ट इज हाउ डज वर्किंग थ्रू टेलीकम्युनिकेशन इंश्योर्स द पर्सनल वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज। सबसे पहले बाय प्रोवाइडिंग देम टाइम टू केटर टू देयर साइकोलॉजिकल वेलनेस। यस, इट फैसिलिटेट्स स्पीडी रिकवरी फ्रॉम एनी फिजिकल इलनेस। तो आप घर पे होते हो तो जल्दी रिकवर होते हो। दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट कॉम्प्रोमाइजेस विद द ओवरऑल प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय। नो, ये नहीं सही है। सो द राइट आंसर इज बी, बोथ 1 and 2। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, वो आपको बताना है। सबसे पहले द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल हु आर नॉट फीलिंग वेल डिक्लाइंस इफ दे अटेंड ऑफिस। दिस इज राइट। ठीक है, अगर वो ऑफिस अटेंड करते हैं तो वो और खराब होती है। टेली कम्यूटिंग कैन बी अ वे टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। दिस इज ऑल्सो राइट। हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। पीपल वर्किंग इन द ट्रेडिशनल ऑफिस एनवायरमेंट आर हाईली अनप्रोडक्टिव। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, वो अनप्रोडक्टिव नहीं होते हैं। वर्क फ्रॉम होम हेल्प टू लोअर द स्ट्रेस लेवल एंड एब्सेंटिज्म। सो दिस इज ऑल्सो राइट। पर हमें बताना था इनमें से फॉल्स कौन सा है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि फॉल्स है। ठीक है। What does the author mean by the phrase no longer is remote work about working on a beach? इसका क्या मतलब है? Work is conducted seriously while working from home. ठीक है, so इसका यही मतलब है कि जो work है वो seriously होता है जब working from home रहता है। Earlier the idea of the remote work included working from a holiday location. नहीं. Earlier the concept of the remote working located popularity. No. Remote working provide the scope of holiday. No. Which of the following is similar in meaning to optimize? Optimize करना मतलब कि इफेक्टिव बनाना किसी चीज को, है ना, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट गेन करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइज। तो ऑप्टिमाइज से सिमिलर कौन सा होगा? मेलिन नहीं होगा, एक्यूरेट भी नहीं होता है, एलिमिनेट भी नहीं होगा एंड अप्रूव भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है टू मेक समथिंग इफेक्टिव मिनिमम। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि किसी कोई चीज आप खरीदने जा रहे हो, उसका ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू में लेना, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट में आप बेस्ट क्वालिटी की चीज ले लो, दैट्स ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें आंसर होगा नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है यू हैव टू रीअरेंज द 5 सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ पैराग्राफ एंड आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपको एक पैराजंबल के फॉर्म में दे रखा है। क्या दिया है? एंड पीपल लाइक द इंडियन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर गेट 3 cents and 1 cent रिस्पेक्टिवली। सचिन तेंदुलकर, आर्ग्यूबली इंडियाज बेस्ट एवर क्रिकेट प्लेयर, अर्न्स some $30 a minute. India's highest paid CEO Mukesh Ambani of Reliance Industries get $10 and celluloid superstar Amitabh Bachchan get $8. To make it tempting to assume that the business of the cricket must be huge and thriving too, but even if you ignore the number, the conclusion is that India's cricket stars are handsomely paid. ठीक है, सो यहाँ पे बात हो रही है किसको कितना पे किया जाता है। तो सिंस यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है तो ये नहीं होगा, दैट मेक्स से स्टार्ट नहीं होगा एंड से भी स्टार्ट नहीं होगा, या तो बी से स्टार्ट होगा या सी से। सो सचिन तेंदुलकर आर्ग्यूबली इंडियाज बेस्ट एवर क्रिकेट प्लेयर अर्न्स सम $30 अ मिनट, हम लोग बी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इंडियाज हाईएस्ट पेड सीईओ मुकेश अंबानी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज गेट $10 एंड द सेल्यूलाइट सुपरस्टार अमिताभ बच्चन गेट $8। उसके बाद सी, एंड पीपल लाइक इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर गेट 3 cents and 1 cent रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दैट मेक्स इट टेम्पटिंग नहीं, बट इवन इफ यू इग्नोर द नंबर्स, बिकॉज यहाँ तक नंबर्स की बात हुई है तो इसके बाद ई आएगा, दैट बट इवन इफ यू इग्नोर द नंबर द कंक्लूजन इज दैट इंडियाज क्रिकेट स्टार आर हैंडसमली पेड, दैट मेक्स इट टेम्पटिंग टू अज्यूम दैट द बिजनेस ऑफ द क्रिकेट मस्ट बी ह्यूज एंड थ्राइविंग टू। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया BCAED। ओके, सो हमारा ऑर्डर था BCAED। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर पैराजंबल आपको पूरा सॉल्व करना नहीं आता है, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो स्टिल ट्राई करो कि आप उसका जो फर्स्ट एंड लास्ट है वो आइडेंटिफाई कर पाओ, बिकॉज आप एटलीस्ट 5 में से 2 मार्क्स तो गेन करके ही जाओगे। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, तो वो हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड, दैट विल बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ, सो इट इज डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड, हमारा ऑर्डर था BCAED, तो सेकेंड हो जाएगा सी। and which of the following will be fourth, so that will be E. all right, इसके बाद नेक्स्ट है in the question given below part of the sentence is bold and you have to choose the right answer। जो बोल्ड में दिया है उसकी जगह क्या आ सकता है। now यहाँ पे क्या मेंशन है, the government has proposed changes in planning the law to ensure that the nature conservation agencies and the planning authorities
अलाउ ऑफ द डिरेक्टिव्स, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, अलाउ ऑफ द डिरेक्टिव्स, तो अलाउ ऑफ की जगह आस्क फॉर द डायरेक्टिव नहीं होगा, एक्ट फॉर द नहीं होगा। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी को रिक्वेस्ट करना, ठीक है, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स है। रिमेंबर कि आप जब भी इंग्लिश के अंदर ग्रामर को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 चैप्टर है, ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस। सो आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, आपका टेंसेस वाला पार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आपका स्ट्रॉन्ग कमांड रहना चाहिए। ये सब होने के बाद जो आर्टिकल्स है, ठीक है, एंड मॉडल्स है, वो सब आने चाहिए। फिर यू हैव टू गो थ्रू इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए। जब आप इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हो तो उसके साथ फ्रेजल वर्ब जैसे कि आस्क फॉर, एक्ट फॉर, कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल अपॉन, कॉल अगेंस्ट, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ये सब भी आपको पता होने चाहिए। डेली आप लोग वोकैब को प्रैक्टिस कीजिए, 10 to 20 न्यू वर्ड्स याद कीजिए एवरी डे। अगर आप एवरी डे नहीं कर पाते तो ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट वीक के अंदर आप लोग 30 न्यू वर्ड्स तो एटलीस्ट याद करें। ओके, आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आपको डेली एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करना है। सो हमारी एप्लीकेशन पे रोज एवरी मॉर्निंग एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस एवरी डे, दिस विल हेल्प यू विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन ग्रामर एंड इन वोकैब सेक्शन। ओके, एंड अगर आपके पास टाइम होता है तो एक हैबिट बनाइए कि डेली आप एक न्यूज़पेपर पढ़े। अगर आप कंप्लीट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते तो उसके अंदर जो एडिटोरियल सेक्शन आता है उसको डेफिनेटली रीड करिए। ओके, सो यहाँ पे दिया है द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड चेंजेस इन प्लानिंग द लॉ टू इंश्योर द नेचर कंजर्वेशन एजेंसीज एंड प्लानिंग अथॉरिटीज अलाउ ऑफ द डायरेक्टिव्स। नाउ अलाउ ऑफ की जगह क्या आएगा, आस्क फॉर द डायरेक्टिव नहीं होगा, आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। एम एट द डायरेक्टिव्स, एम एट नहीं होगा, एम एट का मतलब होता है डिसीजन सेट करना, ठीक है, टू सेट द डिसीजन समथिंग। एक्ट फॉर का मतलब होता है आई एक्ट फॉर हिम, मतलब कि किसी को रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करना, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होना। सो ये भी नहीं होगा। अबाइड बाय जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा, ठीक है, द प्लानिंग अथॉरिटीज अबाइड बाय द डायरेक्टिव्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है Odysseus thought that it was still possible that the Greek army could muscle in the crisis in the war. Muscle in की जगह क्या आएगा यहाँ पे, muscle in the crisis in the war। अब यहाँ पे दिया है muscle into। muscle into का मतलब होता है किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होना। muddle up दिया है, muddle up का मतलब कि कोई ऑर्डर लेना, टू टेक अप एनी ऑर्डर और किसी के ऑर्डर्स मानना। फिर है muddle through, muddle through यहाँ पे राइट आंसर है। Odysseus thought that it was still possible that the Greek army could muddle through the crisis in the war, अभी भी कोई चेंजेस हो सकते हैं। फिर है muscle out, muscle out नहीं होगा, muscle out का मतलब होता है फोर्स दिखाना या फिर पावर दिखाना, ठीक है, तो muscle out नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है by the end of this year California will completely book in from its first 5-year long रिसेशन। बुक इन फ्रॉम द 5-year लॉन्ग रिसेशन नहीं होगा। बाउंस इनटू का मतलब होता है जंप लेना, एक हैवी लीप आना, ठीक है। बाउंस बैक मतलब कि रीगेन करना, तो इस केस के अंदर जो राइट आंसर है वो होगा बाउंस बैक। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो कैलिफोर्निया का 5-year लॉन्ग रिसेशन था वो खत्म हो जाएगा, सो इट विल रीगेन द ओरिजिनल पोजिशन, तो इसके अंदर राइट आंसर होगा बाउंस बैक। फिर दिया गया द बुक वॉज लिबलियस सो द पब्लिशर्स हैड टू कॉल अपॉन ऑल द कॉपीज ऑफ इट फ्रॉम द बुक शॉप्स, ठीक है। सो कॉल अपॉन की जगह यहाँ पे क्या आएगा, द बुक वॉज लिबलियस सो द पब्लिशर्स हैज टू कॉल अपॉन। कॉल फॉर मतलब किसी को बुलाना, कॉल फोर्थ नहीं होगा, द हैड टू कॉल इन। कॉल इन एकदम राइट आंसर है। कॉल इन का मतलब होता है सारी जितनी भी चीजें हैं उन सबको कमांड करना। द बुक वॉज लिबलियस सो द पब्लिशर्स हैज टू कॉल इन ऑल द कॉपीज, जितनी भी कॉपीज है उन सबको ऑर्डर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यू कैन नो लॉन्गर ब्रश अप द आर्ग्यूमेंट दैट द सिस्टम इज अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेट जैकेट वन दैट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वनरस, ठीक है। सो ब्रश अप मतलब कि स्पीड अप करना, किसी चीज को फास्टली करना, ठीक है। नाउ ब्रिंग अप मतलब किसी चीज को लेके आना, ब्रिंग ओवर मतलब कि किसी आर्ग्यूमेंट की बात करना, ब्रिंग बैक भी नहीं आएगा, ब्रश ऑफ मतलब कि किसी चीज को खत्म कर देना, ब्रश ऑफ। सो यू कैन नो लॉन्गर ब्रश ऑफ द आर्ग्यूमेंट, वापस से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। दैट द सिस्टम इज अ सॉर्ट ऑफ एन इकोनॉमिक स्ट्रेट जैकेट वन दैट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वनरस, तो इसके अंदर राइट आंसर होगा डी, दैट इज ब्रश ऑफ। In the questions 2 column and the 3 sentences are given which are divided in 2 part. Column 1 जिसमें ABC है,
वो फर्स्ट हाफ कंसिस्ट करते हैं, एंड कॉलम 2 जिसमें DEF है वो सेंटेंस का सेकेंड हाफ कंसिस्ट करते हैं. सो यू हैव टू मैच 1 विद द 2 ताकि ये एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना सके. ठीक है, सबसे पहले दिया है there seems to be no drop in the form seems to have amplified. नहीं, in the form have been the best motorcycle. नहीं, there seems to be no drop in the form of Ronaldo after the World Cup. So there seems to be no drop in the form of Ronaldo after the World Cup. तो AF एक पेयर बन सकता है. ठीक है, फिर दिया the hatred that both the countries have for each other seems to have amplified after their recent incident. तो ये भी एक करेक्ट फॉर्म बन रहा है. ठीक है, फिर है in his salad days my grandfather was, have been नहीं होगा, seems to have नहीं होगा, रोनाल्डो नहीं होगा. सो राइट आंसर है इसके अंदर AF एंड BD. ओके, फिर नेक्स्ट है 17th. अगेन इसके अंदर भी 2 कॉलम दे रखे हैं एंड आपको राइट बताना है. बोथ द कंपनीज वर टारगेटिंग फ्रॉम अ कार कंपनी, स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज, इन द अटेम्प्ट टू अटैक द एनिमी फोरकास्ट एट अ डिस्टेंस. AE हो सकता है. दैट बोथ द कंपनीज वर टारगेटिंग इन द अटेम्प्ट टू अटैक द एनिमी फोर्सेज एट अ डिस्टेंस. फिर माई अंकल हैड अ डॉग हु, फ्रॉम अ कार कंपनी, स्टूडेंट फ्रॉम अ कॉलेज, बी के साथ कुछ भी नहीं बनेगा. स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स रिप्रेजेंट अ लॉजिकल स्टेप, फ्रॉम अ कार कंपनी, स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज, नहीं. सो सिर्फ एक ही लॉजिकल सेंटेंस बनेगा दोनों कॉलम में से, दैट बोथ द कंपनीज वर टारगेटिंग इन द अटेम्प्ट टू अटैक द एनिमी फोर्सेस एट अ डिस्टेंस. सो AE जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सेल्फिश पॉलिटिशियन शुड नेवर मेक इट यूजुअली इन द फॉर्म goes to the back seat. There was still, नहीं, एक के साथ तो कुछ भी नहीं बनेगा. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट इज being rich doesn't guarantee you. There was still an attempt made usually in the form of a circle goes to the back seat. नहीं. There are apps that calculate the range of your electric car usually in the form of a circle on a map showing the approximate range. तो ये दोनों एक meaningful sentence बना रहे हैं, that is C and D. सो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन A, CD. देन नेक्स्ट है द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक ऑफ हैविंग टू लिव विद दैट. नहीं. द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक समवन नीड. नहीं. द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शुड बी मच मोर कन्विंसिंग. AF एक पेयर है. द डॉग वॉज चेजिंग द स्क्विरल ऑफ हैविंग टू लिव विद दैट. नहीं. The dog was chasing the squirrel. Despite all the effort of having to live, someone need. नहीं, सिर्फ एक ही सेंटेंस बन रहा है, that is AF. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दिया है some men are not interested in can be treated in playing football. ठीक है, AE एक पेयर बन सकता है. some men are not interested in playing football as they find it as a risky sport. उसके बाद क्या है, there were ample reasons why you can be treated on. नहीं, why it was meant to be. नहीं, B के साथ नहीं बनेगा. there is no statute that specifically state that texting can be treated on a par with the criminal negligence. ठीक है, CD एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं. तो AE एंड CD, दैट इज ऑप्शन C जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. क्लियर. नाउ यहाँ पे है अ सेंटेंस विद वन ब्लैंक इज गिवन एंड आपको बताना है कि इन गिवन ऑप्शन में से यहाँ पे क्या परफेक्टली फिट होगा. सबसे पहले यूजुअली व्हेन द लोकल फेस्टिवल इज अ वीक अवे द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द शॉप क्या होगा, विल हैव इंक्रीज्ड, हैज इंक्रीजिंग, विल बी इंक्रीज्ड. नहीं, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीजेस. ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यूजुअली व्हेन द लोकल फेस्टिवल इज अ वीक अवे द नंबर ऑफ कस्टमर इन द शॉप इंक्रीजेस जो है राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है यू विल हैव टू अंडरगो अ डैश ऑफ टेस्ट बिफोर द इंटरव्यू. अ लार्ज ऑफ टेस्ट ये नहीं आएगा. ठीक है, अ सीरीज ऑफ टेस्ट होता है, ये इसके अंदर एकदम राइट ऑप्शन है. अ डिजाइन ऑफ टेस्ट, अ बुकलेट ऑफ टेस्ट, अ डेलीगेशन ऑफ टेस्ट, ये कुछ भी नहीं होगा. फिर वन हैज टू बी वेरी डैश ड्यूरिंग द मॉनसून एज द रोड बिकम स्लिपरी. सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस इज द राइट आंसर. ठीक है, द जज यूज्ड हिज डैश in settling the matter. So the judge used his no नहीं, tactics नहीं, discretion नहीं आएगा, brains, biased नहीं. तो इन सब में से राइट आंसर होगा the judge used his discretion. फिर है the board members could not arrive at the unanimous. The board members could not arrive at the unanimous judgment. इसके अंदर राइट आंसर होगा on the issue. ठीक है, progress, policy, dissent ये नहीं आएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटैगनिस्ट वांटेड टू अनअर्थ द मार्वेलस पावर विच हैज मैग्नेटाइज्ड द नीडल एंड सुपरवाइज्ड 1000 सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताना है कि जो 4 वर्ड्स दे रखे हैं अगर सारे करेक्ट है तो आंसर आएगा ऑल आर करेक्ट, अदरवाइज बताना है कि किसके अंदर मिस्टेक है। नाउ सी द प्रोटैगनिस्ट वांटेड टू अनअर्थ, अनअर्थ का मतलब होता है टू डिस्कवर समथिंग। ठीक है, सो द प्रोटैगनिस्ट wanted to unearth the marvelous मतलब कि अमेजिंग जो होता है, ठीक है, सुपर पावर्स जो होती है, द मार्वेलस पावर ऑफ मैग्नेटाइज द नीडल एंड सुपरवाइज 1000। नाउ यहाँ पे मिस्टेक है, सिलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस आएंगे। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सिलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस होंगे, सो एरर है डी पार्ट के अंदर। फिर है वी कैन इंश्योर मोर बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द रीजन इफ वी हैव लॉज विच गारंटी द प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे किसके अंदर एरर है, यहाँ जो राइट्स लिखा गया है वो रिचुअल वाले राइट्स होते हैं, यहाँ पे जो राइट्स की बात हो रही है वो ये वाले राइट्स होंगे, सो एरर है डी पार्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है अनलेस मोर इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड द पुलिस विल नॉट रिवील द डिटेल ऑफ द ऑल्टरक्यूशन बिटवीन द अरेस्टिंग ऑफिसर एंड द सस्पेक्ट। ऑल्टरक्यूशन नहीं होता है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑल्टरकेशन। द पुलिस विल नॉट गिव द डिटेल्स ऑफ द ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है समथिंग विच इज लाउड या फिर एक तरह का डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो होगी ऑल्टरकेशन की। ओके, नेक्स्ट है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द इंडियंस हैव आउटसेड नहीं होगा, आउटस्टेड होता है, इंडियंस हैव आउटसेड होगा। ठीक है, आउटसेड नहीं होगा, इसकी स्पेलिंग होती है आउटस्टेड। आउटस्टेड का मतलब होता है टू ड्राइव आउट या फिर एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को एक्सपेल करना। ठीक है, सो आउटस्टेड होगा। द नॉन नेटिव्स ऑलमोस्ट always, so it is not flawed to state that the nation will remain integrated till the kingdom come, so error है B part के अंदर। and last यहाँ पे दिया he was famous not only for his interest in the scheme but for the elevation of poverty in Moscow। elevation नहीं होगा, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है एलिविएशन। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग होगी ALLEVIATION, सो इट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक, एलिविएशन। ठीक है, एलिविएशन का मतलब होता है कोई तरह की डिजीज या फिर इलनेस या सफरिंग हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सफरिंग। सो ही वॉज फेमस नॉट ओनली फॉर द इंटरेस्ट इन द स्कीम बट फॉर द एलिविएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन मॉस्को बट ऑल्सो एज द फाउंडर ऑफ द न्यू चर्चेज एंड मोनास्ट्रीज। सो एरर थी इसके अंदर बी पार्ट में। सो आपको सारी स्पेलिंग्स आनी चाहिए, वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। So these were the 30 questions from the English section. Now we'll discuss the next section of maths, that is quantitative aptitude. इसके अंदर 35 questions आते हैं for 35 marks and जो time है again वो sectional रहता है 20 minutes का। So the first question is what will come in the place of the question mark? तो simplification का question है, उसको solve करना है। x square plus 9 square which is 81 plus 34 divide by 5 is equal to यहाँ पे दे रखा है 39। ठीक है, तो कैसे solve होगा, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड ये कितनी बन जाएगी 8 9 10 11 115 बाय 5 इज इक्वल्स टू 39, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 115 इज इक्वल्स टू 45 4 15 195, या फिर 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 0 8 80, और वी कैन से दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 16 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 4। सो 4 इसके अंदर राइट आंसर होगा। उसके बाद है 6 इंटू 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 माइनस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96। ठीक है, तो ये सिंस मल्टीप्लीकेशन में ही है तो ये 2 हो जाएगा 32 इंटू 5 इज 160 माइनस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96, या फिर ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 160 माइनस 96 दैट इज 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 9, सो दिस इज 10 एंड 7 64 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 8, सो द राइट आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 124 प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 169 इज इक्वल टू 18। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं सो दिस विल बिकम 13 होगा, 1 ऊपर जाएगा 7 9 एंड 293 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 18। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो दिस वैल्यू विल बिकम व्हाट 293 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 324,
या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 324 माइनस ऑफ 293, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 3, 31 इज द राइट आंसर। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 784 माइनस ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब कितना होता है 343 प्लस का 225। सो यू सी कि अगर आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 784 माइनस ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8, 6 एंड 568 एंड 784 में से अगर हम लोग 568 को माइनस करें सो दिस इज 6, दिस इज 1 एंड यहाँ आएगा 216 इज इक्वल टू एक्स क्यूब या फिर एक्स की यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी 6। उसके बाद नेक्स्ट है 298 माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 2 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 11। तो यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 177 एंड 298 में से 177 माइनस करेंगे सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट 121 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 11 या फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11। तो D जो है वो राइट आंसर होगा। फिर क्या दिया है x% ऑफ 300 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 81 प्लस रूट 49 किसका होता है 7 का। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये वैल्यू बच गई 3x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 88 और 3x इज इक्वल्स टू 88 माइनस 16 सो दिस इज 272 और x इज इक्वल्स टू 24 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर हो गया। क्लियर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है 4/7 ऑफ 21/32 ऑफ x इज इक्वल्स टू 81 इंटू 12। ठीक है, 7 3 टाइम्स, 4 8 टाइम्स, तो 3/8 x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 81 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 3। ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 4 इज 32 एंड 81 इंटू 32 सो दैट विल बी व्हाट 216 इंटू दिस इज 324 सो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2592। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। फिर क्या दिया है 50% ऑफ एक्स दैट इज हाफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 220। तो x बाई 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 120, उधर जाएगा तो माइनस होगा तो 220 माइनस 120 कितना हो जाएगा 100 या फिर x की क्या वैल्यू आ जाएगी 200। सो b जो है वो राइट आंसर होगा। फिर क्या दिया है 33 1/3%। 33 1/3 को हम लोग 100/3% लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x/3। ठीक है, x/3% प्लस 32 इंटू 42 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2940 इज इक्वल्स टू 35। यहाँ पे क्या दिया 35 इंटू 84 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1596। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे कंप्लीट तो इसका फाइनल आंसर आएगा 4788 जो कि x की वैल्यू होगी। ओके, सो यू डू दिस बाय योरसेल्फ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4788। फिर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 473 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 43। ठीक है, एक्स स्क्वायर 24 इंटू 43 माइनस 66.6 मतलब क्या होता है 2/3 लिख सकते हैं और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 500 लिख सकते हैं माइनस 2/3 ऑफ चलो 501 ही रहने देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 1 इज 320 3 6 इज 18 167 यहाँ पे आएगा। सो ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 473 24 इंटू 43 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1032 एंड ये कितना है 167 हो जाएगा इंटू 2 इज 14 12 13 यहाँ पे आएगा एंड ये 334। तो इसको यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये कंप्लीट वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी 225 या फिर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 15। सो ऑप्शन बी जो होगा वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है एंड आपको मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, सो 200 है, फिर 193 179 158 यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर फॉलोड बाय 95। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 7 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंस है 9 3 इज 4 एंड दिस इज 8 1 14 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 121 का। सो यू कैन सी 7 का आ रहा है फिर 14 का 21 का। सो ऑब्वियसली इट्स द टेबल ऑफ 7 तो जो नेक्स्ट है वो 28 का आना चाहिए। पर इसके साथ साथ यहाँ पे एक और लॉजिक लग रहा है। सी यहाँ पे -7 हो रहा है, फिर जो 14 का डिफरेंस आ रहा है 193 आया उसमें से -14 किया, फिर यहाँ पे -21 किया, अब यहाँ पे -28 होगा तो दिस विल बी 0 3 130 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ऑप्शन ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 3, फिर है 43 81 115 143 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर। तो 3 से 43 मतलब कि 40 का डिफरेंस आ रहा है, 43 से 81 मतलब 8 एंड ये कितना हो गया 38 का डिफरेंस आ रहा है।
फिर यहाँ देखोगे तो 34 का डिफरेंस है, दिस इज व्हाट 15 एंड 3 दिस इज 28 का डिफरेंस। सो 40 38 34 28, मतलब अगर आप डबल डिफरेंस लेते हो तो 2 का आ रहा है, फिर 4 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 का डिफरेंस आना चाहिए, मतलब 8 कम होने चाहिए। 8 कम होंगे मतलब 20, यहाँ पे 8 कम होंगे बट यहाँ पे 20 इंक्रीज होंगे बिकॉज ये एक इंक्रीजिंग सीरीज है। तो 143 में 20 इंक्रीज होंगे तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 163। सो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर? इसके बाद है 1, फिर है 6, 25, 76, 153 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो 1 के बाद 6 आया तो वो कैसे आता है, 1 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। फिर आया 25, 25 कैसे आएगा, 25 इज इक्वल टू व्हाट, 6 4 इज 24। ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करो प्लस 1। ठीक है, फिर आया 76, तो वो कैसे आएगा, जो लास्ट है 25 उससे पहले वाला 3 प्लस 1 किया तो 75 प्लस 1 आ गया 76। फिर आया 153, तो वो कैसे आएगा, 76 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 152 प्लस 1 इज 153। तो अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, 153 इंटू 1 वो 153 रहेगा, प्लस 1 करेंगे तो 154 हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी सी 154। ओके, उसके बाद है 50 54 45, 50 है, फिर 54 है, फिर 45 है, 61 है, 36 है, तो ऑल्टरनेट सीरीज नहीं है। यहाँ पे सी क्या हो रहा है, +4 का हो रहा है डिफरेंस, -9 हो रहा है, फिर यहाँ पे 45 60 +16। ओके, तो ये स्क्वायर्स हैं, ऑल्टरनेट चल रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ -25 हुआ होगा, तो नेक्स्ट क्या होगा, 36 में +36 होगा, तो 72 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर? फिर क्या दिया है, 9, फिर है 45, फिर दिया है 180, फिर है 540 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर फॉलोड बाय 1080। ठीक है, तो 9 से 45 आया, 45 से 180, 180 से 540, ये क्या है 3 टाइम्स, ये क्या हो रहा है 4 टाइम्स, ये क्या हो रहा है 5 टाइम्स। क्लियर लॉजिक? तो यहाँ पे डेफिनेटली 2 टाइम्स होगा, तो 540 का 2 टाइम्स करेंगे तो 1080 आएगा एंड उसको वापस इंटू 1 करेंगे तो 1080 आएगा। सो द राइट आंसर इज 1080। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन में से। नाउ यहाँ पे आपको एक टैबुलर फॉर्म में एक डेटा दे रखा है, PQRS जो है वो डिफरेंट डेज के अंदर आइटम्स को सेल कर रहे हैं एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द आइटम सोल्ड बाय द P ऑन सैटरडे, दैट इज 45, एंड द आइटम सोल्ड बाय Q ऑन संडे, सो Q ऑन संडे इज व्हाट 55। तो सिंपली 45:55 का रेशियो निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 9 एंड 11, 9:11 इज द आंसर। फिर है आइटम सोल्ड बाय P ऑन ट्यूसडे, P जो ट्यूसडे को आइटम सोल्ड करता है दैट इज 35 एंड इज व्हाट परसेंट ऑफ द आइटम सोल्ड बाय S ऑन संडे, संडे को कितना करता है 25, तो 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, ये हमको निकालना है, यहाँ से हो जाएगा 4, सो दिस इज 140%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 140%। फिर दिया व्हाट इज द एवरेज ऑफ द आइटम सोल्ड बाय PQS ऑन मंडे ट्यूसडे एंड सैटरडे, PQS ऑन मंडे देन ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो इन सब का एवरेज यहाँ पे कितना होगा, सी P मंडे को कितना कर रहा है 25, Q ट्यूसडे को कितना कर रहा है, तो ये आ गया 45 एंड सिमिलरली जो S है वो सैटरडे को कितना कर रहा है, सो दैट्स 20, सो दिस इज 10 एंड दिस इज व्हाट 90 डिवाइड बाय 3, क्योंकि हमको एवरेज लेना है, सो 30 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द आइटम सोल्ड बाय द P ऑन सैटरडे एंड संडे, P सैटरडे एंड संडे को कितना कर रहा है 45 + 40 दैट इज 85, रेशियो निकालना है इस टू आइटम सोल्ड बाय द S ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, S मंडे एंड ट्यूसडे को कितना कर रहा है, सो दिस इज व्हाट 80, 85:80 का रेशियो निकालना है, सो दिस इज व्हाट 17 एंड दिस इज व्हाट 16, 17:16 इज द आंसर। फिर है Q sold certain item on Wednesday which was 80% of the total item sold by the Q on Saturday and Sunday both, तो Q Saturday and Sunday को कितना कर रहा है 40 and 55 that is 95। अब वो जो वेंसडे को सोल्व कर रहा है वो उसका कितना है, इसका 80%, 95 का 80% ही कैंसिल हो जाएगा, या 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 1 45 इज 9, 19 into 4 ये वैल्यू हो जाएगी 76, बस यही निकालना था, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 76। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sum become 5 times of itself in the simple interest in 5 year, what is the rate of interest। मान लो कि प्रिंसिपल था 100, 5 साल बाद, मतलब कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम रहता है, तो 5 ईयर के लिए करेंगे तो 5 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा 5 into 100 विच इज इक्वल टू 500। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट
तो हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स। तो कितना हुआ होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, दिस अमाउंट माइनस दिस, दैट इज 400, एंड कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो कितना रहा होगा, 80%। सिंपल। फिर है अ पैसेंजर ट्रेन दैट रन एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर लीव्स द स्टेशन 8 आवर्स आफ्टर द गुड्स ट्रेन लेफ्ट एंड ओवरटेक इट इन 5 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड ट्रेन। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड है। अब वो क्या बोला है कि 78 किलोमीटर पे रन होती है 8 आवर्स के बाद एंड लीव्स द स्टेशन आफ्टर 8 आवर्स, तो 8 आवर्स के बाद ये कितना रन हुई होगी, 8 आवर्स के बाद 8x किलोमीटर पर आवर रन हुई होगी, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड क्या रही होगी, बिकॉज द पैसेंजर ट्रेन जो है वो रन हो रही है 78 की स्पीड से एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारे पास है यहाँ पे x, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 78 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बोला है, लेफ्ट द ट्रेन एंड ओवरटेक इट इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में वो उसको ओवरटेक करती है, तो स्पीड इंटू टाइम दैट इज 78 माइनस एक्स इंटू 5 करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू दिस 8x। सो ये कितना हो जाएगा, 78 इंटू 5 इज व्हाट 390 माइनस ऑफ 5x इज इक्वल्स टू 8x, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 13x, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 30। तो यही पूछा था व्हाट इज द स्पीड, तो दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो है वो इसका राइट आंसर होगा 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे x प्लस 4 एंड द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास इज 48.4, पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो मान लो कि ये बॉयज है ये गर्ल्स है, ठीक है, इतने बॉयज है इतने गर्ल्स हैं, इनका जो एवरेज वेट है वो यहाँ पे दे रखा है 48.4। इफ द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 44, ठीक है, गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 44 है एंड व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, तो बॉयज का एवरेज वेट कितना होगा, टोटल कितने हैं x प्लस 4, हमको ये निकालना है कि एवरेज वेट ऑफ द बॉयज कितना होगा, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से c क्या वैल्यू आ रही है, बॉयज है x प्लस 4, टोटल है x प्लस 4, रिमेंबर की टोटल स्टूडेंट है 40, दैट इज ये जो वैल्यू है ये 40 के बराबर है, दैट इज x प्लस 4 जो टोटल है वो 40 के बराबर है, या फिर बोल सकते हैं 2x 36 के बराबर है, या फिर बोल सकते हैं x की वैल्यू आ गई 18, x की वैल्यू 18 का मतलब कि जो गर्ल्स है वो 18 है, तो 44 इंटू 18 यहाँ पे है, प्लस बॉयज कितने होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे हो जाएंगे 18 प्लस 4 दैट इज 22 डिवाइडेड बाय ये टोटल वैल्यू है 40 जिसका एवरेज है 48.4। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे दैट इज 40 इधर मल्टीप्लाई होगा, उसमें से 44 इंटू 18 को माइनस करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा एवरेज वेट ऑफ द बॉयज एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 52 kg जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। सो डू दिस कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ एंड चेक द आंसर, ऑप्शन सी इसके अंदर राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 36 का क्या फॉर्मूला होता है, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2, सिंस अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम दे रखा है 36 किलोमीटर बाय 2, तो स्पीड ऑफ द बोट यहाँ से निकल जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यहाँ पे मेंशन है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द बोट आ गई, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गई, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द 52.5 किलोमीटर, टाइम कितना है 52.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम निकालना है, तो अपस्ट्रीम के लिए क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज 18 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 52.5 डिवाइड बाय 15। अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, तो ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा, 5105 होगा, यहाँ पे 30 आएगा एंड दिस इज व्हाट 335 बाय 10 होगा, दैट इज 3.5 आवर्स टोटल लगेंगे इस प्रोसेस के अंदर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज 3.5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन इन्वेस्टेड 15% ऑफ हिज मंथली इनकम इन LIC एंड द रिमेनिंग अमाउंट गिव टू हिज मदर, ठीक है। मान लो कि अगर 100% मंथली इनकम है तो उसमें से 15% जो है वो मैन स्पेंड करता है LIC में एंड जो 85% रिमेनिंग है वो दे देता है मदर को, ठीक है। हर मदर स्पेंड 10% इन दी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, नाउ 10% 85 में से, ठीक है, तो 10% ऑफ 85 कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 8.5, तो 8.5 जो परसेंट है वो किस में चला जाता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में, एंड थस शी सेव्ड 30,600, तो मतलब अगर 85% में से 8.5% को माइनस करे तो रिमेनिंग बचता है 76.5%,
ये जो सेविंग है 76.5%, दिस इज इक्वल टू व्हाट 30,600, राइट। एंड अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो हमें मंथली सैलरी ऑफ द मैन बतानी है। तो अगर 76.5% की वैल्यू ये है तो 1 की हो जाएगी 30,600 डिवाइडेड बाई 76.5 एंड 100% की वैल्यू हो जाएगी इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कंप्लीट सॉल्व करने पर आएगा 40,000, ठीक है। तो जो मैन है उसकी मंथली सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिटी 68% पॉपुलेशन इज लिटरेट, ठीक है, एंड इन विच द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 11:16। तो एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे पॉपुलेशन की बात की गई है। दो तरह की पॉपुलेशन है, एक लिटरेट और एक इलिटरेट पॉपुलेशन, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन उस सिटी में कितना दिया है 68%, ठीक है। अब यहाँ पे तो इलिटरेट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, illiterate population हो जाएगी 100 माइनस 68%, सो दिस विल बी इक्वल टू 32%। अब लिटरेट में क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है वो 11:6 के रेशियो में, ठीक है। तो मेल इज टू फीमेल इज इक्वल टू 11:6 के रेशियो में, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मेल कितने हो जाएंगे 68% है ऑफ 11 प्लस 6 इंटू 11 इज टू फीमेल कितनी हो जाएगी 68/11 प्लस 6 इंटू 6, ठीक है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 68 इंटू 11, ये अराउंड आएगा 44% इस टू ये वैल्यू आ जाएगी 24% के आसपास, ठीक है। अब इलिटरेट के अंदर क्या है, द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल टू द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल का भी रेशियो दिया है 3:1। तो मेल इज टू फीमेल का रेशियो यहाँ पे कितना है 3:1। ना जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इलिटरेट पॉपुलेशन कितनी है 32% डिवाइड बाय टोटल कितना है 3 + 1 दैट इज 4। उसके अंदर मेल इज टू फीमेल अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा 3। सिमिलरली 32 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इंटू फीमेल है 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 24:8% की, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या मिल गई फीमेल। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द लिटरेट फीमेल टू द इलिटरेट फीमेल, ठीक है, हमको ये निकालना है। तो लिटरेट फीमेल है 24% एंड यहाँ 24% एंड इलिटरेट फीमेल जो कि है 8%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 3:1। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A is 1.5 times more efficient than B। अगर हम लोग A is to B का रेशियो निकाले तो A जो है, मान लो कि B अगर 1 है तो A 1.5 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 2.5:1 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो ये क्या होगा 25:10 और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5:2। अब क्या दिया है, A एंड B टेक 7 days टू कंप्लीट द वर्क। A एंड B को एक साथ काम को खत्म करने में 7 days लगते हैं। हाउ मेनी डेज विल B एंड C टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। एक और चीज दे रखी है दैट B एंड C इज 2 times मोर एफिशिएंट देन A। दैट इज जो C है वो A से 2 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है। अगर A 1 है तो C 2 हो जाएगा, ठीक है। इस केस के अंदर अगर A 5 है तो C 10 हो जाएगा। तो अगर हम लोग तीनों का रेशियो निकाल दें A is to B is to C तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5:2:10, ठीक है। अब क्या बोला है, वर्क जो है A एंड B जो है, वर्क डन बाय A एंड B, वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। A की एफिशिएंसी है 5, B की एफिशिएंसी है 2, तो टोटल 7 एंड काम को कितने टाइम में खत्म करे 7 1/2। दिस इज व्हाट को जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 52 1/2 यूनिट, ठीक है। इतने टाइम में ए एंड बी किसी काम को खत्म कर रहे हैं। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल बी एंड सी टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो अब टाइम टेकन बाय बी एंड सी निकालना है। तो टाइम क्या होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 52 1/2 एंड बी एंड सी की एफिशिएंसी टुगेदर कितनी है, तो बी की है 2, सी की है 10 दैट इज 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 35/8। उसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/8 डेज, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी 3/8 डेज। यहाँ पे नहीं गिवन है तो राइट आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम 7 मार्क्स गिवन फॉर द राइट आंसर एंड 4 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर एंड द टोटल मार्क्स फॉर द स्टूडेंट इज 263। हर करेक्ट आंसर के लिए 7 दिए जाते हैं, हर रॉन्ग आंसर के लिए 4 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं। टोटल स्टूडेंट के 263 मार्क्स आते हैं। देन हाउ मेनी राइट आंसर इज गिवन बाय द स्टूडेंट इफ द टोटल अटेम्प्ट जो है वो 58 है। देखो अगर 7 जो है वो करेक्ट मार्क्स के लिए मिलता है तो करेक्ट मार्क्स हो गए A। हर इनकरेक्ट मार्क्स के लिए 4A डिड्यूस कर दिए जाते हैं। तो 4A डिड्यूस करेंगे किस में से,
इनकरेक्ट, टोटल अटेम्प्टेड है 58, उसमें से हम लोग इतने 4a रिड्यूस कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 263। बस ये सिंपल इक्वेशन है। तो ये क्या बन जाएगा, 11a इज इक्वल्स टू 263 प्लस 232, या फिर दिस इज इक्वल्स टू 495, या a की वैल्यू आ जाएगी 495/11, 495/11, दिस इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द डायमीटर इज 90, ठीक है। एंड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल बी इज 7 सेंटीमीटर लेस देन ए, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल बी। सबसे पहले क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ए 2 पाई आर ए एंड द डायमीटर, डायमीटर कितना होता है ट्वाइस 2r। तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दे रखा है 90 के बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 एंड 22/7 माइनस 1 ऑफ आर ए, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये इधर चला जाएगा, 90 डिवाइड बाई 2 ये वैल्यू बन जाएगी 45। इसको और सॉल्व करेंगे तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, ये कितना बन जाएगा 22 माइनस 7 हो जाएगा, सो दिस विल बी 15 एंड यहाँ पे होगा इंटू 7/15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा, दैट इज यहाँ से रेडियस ऑफ ए निकल जाएगा 21 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, रेडियस ऑफ बी जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, तो रेडियस ऑफ बी क्या होगा 21 माइनस 7, ये वैल्यू निकल जाएगी 14 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल बी निकालना है। तो एरिया ऑफ द सर्कल बी क्या होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द बी स्क्वायर, पाई होता है 22/7 और ये हो जाएगा 14 इंटू 14, ये वैल्यू आ जाएगी 2, ये हो जाएगा 44 इंटू 14, so this will be equal to what 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द फाइनल अमाउंट इज 5:8। रिमेंबर अगर प्रिंसिपल 5x है एंड जो अमाउंट है वो 8x है, तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा 8x माइनस 5x, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 3x ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PNR/100, ठीक है। ये हमको पता है, इंटरेस्ट हमको पता चल गया अब कितना आ रहा है 3x, 3x इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था 5x, टाइम कितना दे रखा है 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 5x इंटू 5, ये हो जाएगा 25x, 3x, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3x इज इक्वल्स टू 25x इंटू r/100, ये हो जाएगा 4, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 12x इज इक्वल्स टू r%, या फिर यहाँ से r की वैल्यू x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 12%। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अगर 196 दे रखा है तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 14। सिमिलरली यहाँ पे y जो है माइनस प्लस है तो जो रेशियो है वो प्लस प्लस में आएगा, एंड 169 दे रखा है तो 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 एंड 13 आया, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो प्लस 14 दोनों से बड़ा है बट माइनस 14 जो है वो दोनों से छोटा है इस केस के अंदर, तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा ई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है माइनस प्लस है, तो यहाँ पे जो रूट्स है वो प्लस प्लस आएंगे, प्लस माइनस है तो यहाँ जो रूट्स है वो प्लस एंड माइनस, तो जो रूट्स है वो माइनस एंड प्लस आएंगे, ओके। नाउ यहाँ पे क्या है 5 एंड 2, तो 10 हुआ, यानी कि जो रूट्स है वो 5/2 एंड 2/2, ये दो रूट्स बनेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आई 5/2, मतलब क्या होता है 2.5 आया पॉजिटिव का और 1 आया, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 एंड 3 ये रूट्स बनेंगे, एंड हमको 4 लेके आना है, तो दिस विल बी व्हाट 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 6, ये होगा 2, 6/2 एंड 2/2, ये वैल्यू आएगी माइनस का 3, ये वैल्यू आएगा प्लस का 1। अब देखो पॉजिटिव 2.5 जो है वो दोनों से बड़ा है, 1 जो है वो इक्वल एंड ग्रेटर है, तो इसका आंसर क्या होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ओके। फिर नेक्स्ट है x क्यूब 343 है, तो x की वैल्यू 7 आएगी, y स्क्वायर माइनस 196 इज इक्वल टू 0 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 196 लिख सकते हैं, तो y की वैल्यू जो है यहाँ पे प्लस माइनस 14 आएगी। नाउ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। फिर है माइनस प्लस है, तो जो रूट्स है वो प्लस प्लस आएंगे, एंड यहाँ पे भी अगेन माइनस प्लस है, तो रूट्स जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे क्या रूट बनेगा 4 एंड 1, एंड यहाँ पे क्या रूट बनेगा 4 एंड 3, 4/4 एंड 3/4,
ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 1 एंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, पॉइंट पॉजिटिव का 0.30 तो 7 के आसपास आएगा। सो +4 दोनों से बड़ा है एंड 1 जो है वो इक्वल एंड बड़ा है, सो राइट आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है कौन सेक्शन में पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जो रूट्स है वो नेगेटिव नेगेटिव आएंगे एंड नेगेटिव पॉजिटिव है तो जो रूट्स है वो पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। अब आपको रूट्स निकाल के सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि कुछ भी रूट आए यहाँ पे y जो है वही बड़ा होगा। सो राइट आंसर इज that y is greater than x. Okay, so these were the 35 questions from the quant section. Now we'll see the reasoning. Reasoning के अंदर भी 35 questions आएंगे for 35 marks and time रहेगा 20 minutes का। Now see, यहाँ पे क्या दिया है, 7 people P Q R S T V W give a test starting from Monday to Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 7 लोग हैं जो कि डिफरेंट डेज के अंदर टेस्ट देते हैं। 4 people give the test between R and S. P gives the test on Wednesday. Definite information क्या है कि P Wednesday को टेस्ट देता है। No person give the test between P and Q. उनके बीच में कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल केस बन सकते हैं कि या तो Q P के ऊपर होगा या फिर जो Q है वो P के नीचे होगा। ठीक है, एंड फिर क्या दिया, देर आर 3 people who give the test between T and V. T gave the test before V. T and V के बीच में 3 लोग आएंगे एंड W does not give the test on Sunday. W संडे को नहीं आएगा। At least 2 people give the test before S. S से पहले कम से कम 2 तो देते ही है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन थी दैट 4 people give the test between R and S. अब हमको नहीं पता पहले कौन आएगा बट इनके बीच में 4 लोग आएंगे, S and R। ठीक है, अब हम S को ऊपर नहीं ले सकते हैं बिकॉज एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है दैट एटलीस्ट 2 people give the test before S. S से पहले 2 लोग टेस्ट देंगे तो एंड S and R के बीच में 4 लोग आएंगे। ठीक है, 4 people give the test. अगर हम लोग इस केस के अंदर 4 people give the test between S and R, अगर S को ऊपर तो नहीं ले सकते, बॉटम में लेंगे तो 1 2 3 4, पर R यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अगर इस केस में हम लोग S को यहाँ ले तो 1 2 3 4, 4 लोग टेस्ट देते हैं तो इसमें R यहाँ पे आया। सिमिलरली इसके अंदर 4 लोग टेस्ट देंगे S and R के बीच में, तो S अगर यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 4, तो R इस केस में यहाँ पे आएगा। ठीक है, रिमेंबर कि S ऊपर इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज एटलीस्ट 2 people गिव द टेस्ट बिफोर S. S से पहले एटलीस्ट 2 तो आने ही चाहिए, तो हमेशा R ही ऊपर आएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन दी है कि T and V के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो 3 people इज सिटिंग बिटवीन T and V. अब यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है कि हम लोग T and V को बैठा पाए बिकॉज अगर T यहाँ आता है तो भी 2 ही लोग हैं एंड V, तो ये वाला कंडीशन तो फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो T and V के बीच में 3 लोग बैठे हैं, दैट इज अगर T यहाँ लेते हैं, T V से पहले आएगा 1 2 3, इस केस में V यहाँ आ जाएगा एंड सिंस W संडे को नहीं आता है तो W सैटरडे को आ जाएगा। सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर। ओके, सो क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल अटेम्प्ट द टेस्ट आफ्टर आर, तो कितने लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, 5. हु गिव द टेस्ट ऑन संडे, तो आंसर हो जाएगा S. उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्यू गिव द टेस्ट ऑन थर्सडे, तो यही ट्रू है। देखो क्यू ने थर्सडे को टेस्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद है W गिव द टेस्ट ऑन सैटरडे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड अनसेटल्ड, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अनसेटल्ड, ठीक है, ये वर्ड आपको दे रखा है एंड इनके बीच में कितने पेयर बनेंगे ये आपको बताना है। सो सी UVWXYZ ये नहीं बनेगा, MNO नहीं होगा, NOPQRSTU ये भी नहीं होगा, STU, तो SNU एक पेयर बना, STUVWXY ये नहीं होगा, EFGH E से इधर देखो, FGHIJ ये भी नहीं होगा, देन TUVWX इधर भी नहीं होगा, TUVWX इधर भी नहीं आएगा, TUVWXY UVWX यहाँ भी नहीं होगा, LMNOPQR LMN ये भी नहीं हो रहा है, फिर EFGHIJKL यहाँ भी नहीं हो रहा है, पर DE ये एक पेयर बन रहा है, तो SU एंड DE ये एक पेयर बन रहे हैं, तो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा 2 पेयर्स आर फॉर्म्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। सबसे पहले दिया है ऑल द बाइक्स आर कार्स एंड सम कार्स आर ट्रक्स, ये आपका डायग्राम है। अब पूछा है सम बाइक आर ट्रक, अभी तो नहीं है, सम बाइक आर ट्रक ये अभी नहीं है।
एंड फिर है नो ट्रक इज कार, नो ट्रक इज कार, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो। फिर है सम टॉफी आर इक्लेयर्स एंड ऑल इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क एंड सम डेयरी मिल्क आर चोकोबार, ठीक है। फिर दिया है सम इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क, सम इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क, एटलीस्ट सम इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क, ये यहाँ पे दे रखा है, तो ये ट्रू है बिकॉज जो इक्लेयर्स है वो डेयरी मिल्क है। फिर दिया है नो टॉफी इज अ चोकोबार, अभी तो ट्रू है पर ऑल्टरनेट बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इस केस के अंदर राइट आंसर है ओनली द कंक्लूजन वन फॉलोज। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है दैट सम बॉक्स आर टेबल, सम बॉक्स आर टेबल, नो टेबल इज अ बोर्ड, रिमेंबर ये बॉक्स है, नो टेबल इज अ बोर्ड एंड सम बोर्ड आर वॉल। अब पूछा है सम बोर्ड आर बॉक्स, सम बोर्ड आर बॉक्स, तो अभी तो नहीं है, नो बोर्ड इज अ बॉक्स, ये भी अभी गलत है, ठीक है। नो बोर्ड इज अ बॉक्स बिकॉज ऑल्टरनेट बनाएंगे तो हो सकता है ना। और सी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है, नो एंड सम वाली कंडीशन है, तो ये कैसा केस बन गया, आइदर और की सिचुएशन हो गई। सो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइदर कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रखा है सम टॉफी आर एक्लेयर्स, ऑल एक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क एंड सम डेयरी मिल्क आर अगेन चोकोबार, तो यहाँ पे पूछा है सम चोकोबार बीइंग टॉफी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ ऐसा हो सकता है। फिर है नो टॉफी इज डेयरी मिल्क, नो टॉफी इज डेयरी मिल्क, तो ये गलत है, तो इस केस में राइट आंसर होगा ओनली द कंक्लूजन वन फॉलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे क्या दिया है 12 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, दो पैरेलल रोज है जहाँ पे 12 लोग बैठे हैं, रो वन में ए से लेके एफ तक है एंड वो सब साउथ देख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड रो टू में 6 लोग हैं वो सब नॉर्थ फेसिंग है। हम लोग पहले से ही दो कंडीशन बना के चलते हैं 4 5 6 एंड साउथ में 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। Therefore, in the given sitting arrangement, the member faces the other member of the row. अब यहाँ पे दिया है V sit third to the right of S and S faces F. F does not sit at any extreme end of the line. ठीक है, तो V जो है कैसे बैठा है, V sit third to the right of S. Now यहाँ पे since सब नॉर्थ फेसिंग है, तो अगर S यहाँ पे आता है, ठीक है, S यहाँ आएगा, V sit third to the right, S यहाँ आता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड V यहाँ पे आएगा। एक और क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर S यहाँ आता है तो 1 2 3 V यहाँ पे आएगा। रिमेंबर S को अगर हम लोग फर्स्ट पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, S को अगर यहाँ पे लेते हैं तो V सेट 1 2 3 यहाँ पे आएगा। अब क्या दिया है, V सेट थर्ड टू द राइट ऑफ S, S फेसेस F, S जो है वो F को फेस कर रहा है और F किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता है, इसलिए ये वाली कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो F है वो यहाँ आएगा, इस केस के अंदर जो F है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर दिया है D सेट थर्ड टू द राइट ऑफ C एंड R फेसेस C, ठीक है, D सेट थर्ड टू द राइट ऑफ C एंड R जो है वो C को फेस करता है, तो कहीं पे भी हम अभी तो बना सकते हैं बिकॉज D सिट थर्ड टू द राइट ऑफ C, अगर C यहाँ आता है तो 1 2 3 D यहाँ भी आ सकता है, अगर C यहाँ आता है तो 1 2 यहाँ नहीं आएगा एंड एक और कंडीशन बनती है कि अगर D यहाँ आता है तो 1 2 3 C यहाँ आ सकता है। इसके अंदर क्या होगा, D सिट थर्ड टू द C यहाँ आता है 1 2 3 ये नहीं बनेगा एंड अभी कोई भी कंडीशन बन सकती है। द वन हु इज फेसिंग E सिट थर्ड टू द राइट ऑफ P, B and P do not sit at the extreme end of the line. P is not an immediate neighbor of V and A is not an immediate neighbor of C. R does not sit at extreme end. ठीक है, R extreme end पे नहीं बैठा है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, D sit third to the right of C और C जो है वो R को फेस कर रहा है, ठीक है, और R extreme end पे नहीं बैठेगा। तो अगर मैं C को यहाँ लेती हूँ, ठीक है, तो क्योंकि C यहाँ आएगा तो 1 2 3 D यहाँ तो नहीं आ सकता है, C इस केस में अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे अगर हम लोग लेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे D आएगा, या फिर एक कंडीशन बनती है कि C अगर यहाँ लेते हैं D आ जाएगा थर्ड टू द राइट, तो 1 2 3 D यहाँ आएगा, C को जो फेस कर रहा है वो R हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, C यहाँ नहीं ले सकते हैं बिकॉज अगर R यहाँ आएगा तो R एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, C यहाँ नहीं ले सकते बिकॉज C को R फेस कर रहा है, C यहाँ पे लेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो D यहाँ पे आएगा एंड C को R फेस कर रहा है, ये दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, R फेसेस C, द वन हु इज फेसिंग E इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, जो E को फेस कर रहा है वो थर्ड टू द राइट ऑफ P है,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई, या तो ई यहाँ आएगा या फिर ई यहाँ आएगा या ई यहाँ आएगा, बट वो थर्ड टू द राइट ऑफ पी है, तो अगर पी इधर होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो ये कंडीशन बनेगी। पी यहाँ नहीं हो सकता बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ आएगा बट यहाँ ई नहीं आ सकता है, तो एक ही पॉसिबल केस बनेगा इसमें कि पी यहाँ होएगा तो ये थर्ड होगा, इसको जो फेस कर रहा है वो ई आएगा। सिमिलरली इसमें अगर पी यहाँ होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट यहाँ ई नहीं आ सकता, पी यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ ई आएगा, तो इसमें पी यहाँ होगा, ई यहाँ आएगा। ओके, एंड फिर क्या कंडीशन दे रखी है, द वन हु इज फेसिंग ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, बी एंड पी डू नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। इसमें ई जो है वो एक्सट्रीम एंड में आ रहा है, ये केस ही कैंसिल हो गया। ठीक है, बी एंड पी एक्सट्रीम में नहीं आएंगे, तो इसमें बी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे एक ही केस बचा कि ए यहाँ आएगा। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, टी यहाँ नहीं आएगा तो टी यहाँ आ जाएगा सिंपली, तो क्यू यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल डायग्राम है। ठीक है, तो अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करना है। तो हमारा फाइनल डायग्राम क्या बना था कि 6 लोग हैं रो 1 में, 4 5 6 एंड 6 लोग हैं रो 2 में। जो रो 2 वाले हैं वो सारे नॉर्थ फेसिंग है, जो रो 1 वाले हैं वो सारे साउथ फेसिंग है। तो यहाँ पे पर्सन थे डी बी एफ, फिर था सी ई ए, एंड उनको फेस कर रहे थे रिस्पेक्टिव पर्सन टी पी एस आर क्यू एंड वी। अब क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस डी, डी को कौन फेस कर रहा है, टी। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, डी टी ए वी, टी है ए है। ठीक है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, बी का रिलेशन जस्ट उससे पहले टी के साथ है, ए का रिलेशन जस्ट उससे पहले क्यू के साथ है, सी का रिलेशन जस्ट उससे पहले एस के साथ है, एफ का रिलेशन पी के साथ है, तो जो डी है उसका रिलेशन आर के साथ फॉरवर्ड के साथ नहीं हो सकता है, तो ये ऑड वन आउट है। फिर है 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, क्या है, डी एस वी टी ए, डी वी ए टी ये सारे कॉर्नर में है, एस बीच में है, तो ये ऑड वन आउट होगा। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन आर एंड टी, आर ये रहा, टी ये रहा, इसके बीच में कितने पर्सन है, जस्ट 2 पर्सन आर देयर, आर एंड टी के बीच में 2 लोग हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। ओके, फिर नेक्स्ट दे रखा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। नाउ यहाँ पे क्या है, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर while the 4 sit in the middle of the 4 side। तो इस तरह से 8 लोग बैठे हैं। अगेन हम लोग 2 केस लेके चलते हैं। ठीक है, 4 लोग स्क्वायर के कॉर्नर में बैठेंगे एंड जो 4 लोग हैं वो स्क्वायर के सेंटर में बैठेंगे। तो इस तरह से 8 persons आर सिटिंग। फिर द वन हु सिट एट द कॉर्नर फेस द सेंटर, जो भी कॉर्नर में बैठे हैं वो सब सेंटर में देखेंगे, एंड जो सेंटर में बैठे हैं वो सारे कैसे हैं, द वन हु सिट इन द मिडल फेसेस आउटसाइड, वो सब बाहर देखेंगे। ठीक है, अब हमको कंडीशन क्या गिवन है, P फेसेस द सेंटर एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द V। P किसी सेंटर में देख रहा है, मान लो कि ये P है, ये सेंटर में देख रहा है, तो इट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द V। तो V यहाँ आएगा बिकॉज ये बाहर देख रहा है, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो V यहाँ आएगा तो P यहाँ आएगा। इसमें भी सेम बनेगा कि V अगर यहाँ आता है तो उसके थर्ड राइट में P होगा। फिर है T हु फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। अब T सेंटर में देख रहा है, वो V का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो T यहाँ 2 नहीं आएगा। यहाँ पे सेंटर में देखने के लिए P ऑक्यूपाइड हो गया, तो सिर्फ T के पास एक ही कंडीशन बची। ठीक है, ये भी हो गया। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W। अब V एंड W के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, तो या तो W इधर आएगा या फिर W इधर आएगा। ओके, S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q फेसेस द सेंटर। Q जो है वो सेंटर में देख रहा है, एंड Q जो है वो सेंटर में देख रहा है, एंड S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, Q को अगर यहाँ बनाते हैं तो S सिट सेकंड टू द राइट, पर यहाँ पे T आ रहा है। ठीक है, तो Q इसमें यहाँ बनेगा, तो S उसके सेकंड राइट में, तो S यहाँ पे आएगा। सिमिलरली Q अगर यहाँ बनाते हैं तो उसके सेकंड राइट में तो T आ रहा है, तो Q यहाँ आएगा, तो S यहाँ पे आ जाएगा। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। R यहाँ नहीं आएगा, तो इस केस में R यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबल कंडीशन बची, वो हो जाएगा Y, एंड R P का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इधर भी R आएगा, इधर भी R आएगा, दोनों केस में R P का इमीडिएट नेबर ही बनेगा। तो ये वाला पूरा केस ही एलिमिनेट हो गया। तो ये आपका लास्ट एंड फाइनल डायग्राम है। ओके, सिंपल था। नाउ क्वेश्चन को आंसर करना है, तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या हुआ कि एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे 4 लोग बैठे हैं, जिसके सेंटर में भी 4 लोग हैं। जो कॉर्नर में बैठे हैं दे आर फेसिंग इनसाइड द स्क्वायर, एंड जो मिडल में बैठे हैं दे आर फेसिंग आउटसाइड। बस आपको जो जो डेफाइनाइट इन्फॉर्मेशन दी है वहां से इसको सॉल्व करते जाना है। P Y T R S V
Q एंड यहाँ पे ये लास्ट बच जाएगा W। हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q? Q के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? तो P आ जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू V? V के रिस्पेक्ट में T की क्या पोजीशन है? तो ये कैसे है, इधर राइट आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा। ओके, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, R W V S Y। तो Y बाहर देख रहा है, R बाहर देख रहा है, V बाहर देख रहा है, W बाहर देख रहा है, S जो है वो फेसिंग इनसाइड है, तो ये ऑड वन आउट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क? W का रिलेशन P के साथ किया है जस्ट उससे पहले, T का रिलेशन R के साथ किया है मतलब कि लेफ्ट में, ठीक है। Q का रिलेशन W के साथ किया है मतलब अगेन उसके लेफ्ट में। R का रिलेशन S के साथ किया है, दैट इज R का रिलेशन S के साथ यानी कि उसके राइट में। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा? C। सबसे पहले W हो गया P के साथ, फिर W P के साथ, फिर T और R, फिर वापस क्या हुआ, Q का रिलेशन आया W के साथ, फिर R का रिलेशन आया S के साथ, ठीक है। तो अब पॉसिबल कंडीशन यहाँ पे क्या बचती है कि ये हो गया, ये हो गया, तो अब Y आएगा T के साथ, सो Y विल फॉर्म द पेयर विद T। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग R? तो R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, ये गलत है। R फेसेस द सेंटर भी गलत है। R सिट एग्जैक्टली बिटवीन T एंड S, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन 85 से 87, E इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ I। I से 10 किलोमीटर वेस्ट पे यहाँ पे है E, ठीक है। हाँ, E इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ I, C इज 5 किलोमीटर साउथ ऑफ E। E से 5 किलोमीटर साउथ में है C। A इज 15 किलोमीटर ईस्ट ऑफ C। C से 15 किलोमीटर पे यहाँ तक 10 है, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे A इज 15 किलोमीटर ईस्ट ऑफ C, यहाँ पे आ गया। F इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H। F इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H एंड B इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A। तो A से 5 किलोमीटर वेस्ट पे यहाँ पे आ जाएगा B, ठीक है। ये टोटल 15 है, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। H इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ E। तो H जो है वो E के नॉर्थ में 5 किलोमीटर है। एंड यहाँ पे एक और चीज दे रखी थी कि F इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H। 10 किलोमीटर H के वेस्ट में यहाँ पे F आएगा, ठीक है। एंड फिर क्या दे रखा है, H इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ, D इज 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ C। C के 15 किलोमीटर वेस्ट में क्या है, C इज 15 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ C। यहाँ तक है 10 किलोमीटर, ठीक है। और इसके 15 किलोमीटर तक C के, ये जो 15 किलोमीटर है ये क्या है, D इज 15 किलोमीटर, तो ये 15 है। रिमेंबर यहाँ तक ये पॉइंट 10 है, तो ये 5 होगा। G इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ F। G इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ F, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर पे G आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन? HEC स्ट्रेट लाइन में, CBA, CBAB स्ट्रेट लाइन में, IFC, IF एंड C ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। बाकी देखो GFH स्ट्रेट लाइन है एंड DCB ये भी स्ट्रेट लाइन है। फिर है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू A? A के रिस्पेक्ट में ये रहा A, तो A के रिस्पेक्ट में G की क्या डायरेक्शन हो गई, तो ये कैसा है, नॉर्थ वेस्ट। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, B इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू C? B इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू C? तो ये ईस्ट हो गया। एंड एट व्हाट डिस्टेंस? तो ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर ईस्ट। तो राइट आंसर होगा C, 10 किलोमीटर ईस्ट। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे। तो डायग्राम काफी बड़ा आपको और बहुत ध्यान से बनाना होता है, बट क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत इजी आते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर में से। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है, दैट स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। 6 पर्सन हैव द डिफरेंट हाइट। MNOP QR 6 लोग हैं, उनके डिफरेंट हाइट है। N जो है वो P से टॉलर है, M जो है वो R से तो टॉलर है बट P से शॉर्टर है, ठीक है। तो P के बाद M आ जाएगा, फिर R आ जाएगा। फिर क्या दे रखा है, एटलीस्ट 1 पर्सन इज शॉर्टर देन R। R से कम एक तो शॉर्टर होगा, मतलब R सबसे शॉर्टर नहीं है। द नंबर ऑफ पीपल टॉलर देन Q इज सेम एज शॉर्टर देन O। तो जितने लोग Q से, अब 6 ही लोग हैं, ठीक है, 4 तो अरेंज हो गए, तो जितने लोग
Q से टॉलर होंगे उतने ही लोग O से शॉर्टर होंगे। तो Q से टॉलर कोई नहीं है तो O से शॉर्टर भी कोई नहीं होगा, एंड Q जो है वो M से टॉलर है, तो ये फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, Q इज ग्रेटर देन N P M R O। नाउ यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन Q, तो आंसर है 0। हु अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट इन द ग्रुप, तो आंसर हो जाएगा शॉर्टेस्ट कौन है, O। एंड हु अमंग द फॉलोइंग इज टॉलर देन N, हु अमंग द फॉलोइंग इज टॉलर देन N, तो आंसर हो जाएगा Q। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 91 से 95। यहाँ पे क्या बोला है, 7 फ्रेंड्स आर विजिटिंग डिफरेंट सिटीज एंड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द वन हु विजिट झांसी इज इमीडिएटली अबाउट द वन हु विजिट लखनऊ। जो झांसी जाती है वो लखनऊ से जस्ट ऊपर है। ठीक है, एंड देर आर ओनली 2 पर्सन हु विजिट, देर आर ओनली 2 पर्सन हु विजिट द अमृतसर एंड द वन हु विजिट झांसी। झांसी एंड अमृतसर के बीच में 2 ही लोग हैं, या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बना दें, मान लो कि ये झांसी है एंड ये लखनऊ है, तो झांसी एंड लखनऊ के बीच, इसके बीच में 2 लोग एंड 2 पर्सन, एंड यहाँ पे आ गया अमृतसर। ठीक है, देर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन द वन हु विजिट द अमृतसर एंड द वन हु विजिट द झांसी, तो उनके बीच में 2 लोग, या फिर ये वाली कंडीशन की झांसी और अमृतसर के बीच में 2 लोग। ओनली 3 पर्सन आर बिटवीन द वन हु विजिट द शिमला एंड द वन हु विजिट द ऊटी, एंड द वन हु विजिट द भुवनेश्वर इज जस्ट अबाउट द वन हु विजिट द शिमला। शिमला के जस्ट ऊपर भुवनेश्वर, एंड शिमला एंड ऊटी के बीच में 3 लोग। ओनली 1 पर्सन इज देयर बिटवीन द वन हु विजिट द दिल्ली एंड द वन हु विजिट द भुवनेश्वर। भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच में भी एक ही पर्सन। नाउ एक चीज याद रखना कि टोटल 7 लोग ही है। ठीक है, अगर इस वाली कंडीशन को हम लोग लेके चलते हैं तो टोटल 7 लोग है, एंड यहाँ पे क्या बोला है कि शिमला एंड ऊटी के बीच में 3 लोग आएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ऊटी एंड शिमला, तो 1 2 3 4 5, यानी कि अगर ऊटी को सबसे ऊपर लेते हैं तो यहाँ पे 1 पर्सन और आएगा, तो 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा शिमला। ऊटी एंड शिमला के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, शिमला के जस्ट ऊपर भुवनेश्वर है, एंड यहाँ पे एक और कंडीशन है कि शिमला दिल्ली एंड द वन हु विजिट, तो ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन दिल्ली एंड जो भुवनेश्वर जाता है, तो भुवनेश्वर एंड दिल्ली, तो ये वाली कंडीशन सेट होगी। एंड अगर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ 4 लोग हो गए, तो अगेन 5 6 7, अगर ये कंडीशन बनाते हैं तो ऊटी एंड शिमला के बीच में 1 2 3 लोग हैं, पर शिमला यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, एंड ऊटी एंड शिमला के बीच में अगर 3 लोग हैं, ऊटी को यहाँ लेते हैं तो 1 2 3, तो शिमला यहाँ पे आएगा। शिमला के जस्ट ऊपर भुवनेश्वर है तो वो यहाँ नहीं आ सकता है। मतलब कि अगर आप इसमें कोई भी पॉसिबल कंडीशन लेके देख लो, ये सब गलत ही होगा, तो आपका फाइनल अरेंजमेंट यही बनेगा। ऑलराइट, सो हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या बना था कि जो 7 पर्सन है वो इस तरह से अरेंज है कि 7 पे है ऊटी, 6 पे है दिल्ली, 5 पे आ जाएगा अमृतसर, 4 पे होगा भुवनेश्वर, 3 पे आएगा शिमला, 2 पे आएगा झांसी, एंड 1 पे आ जाएगा लखनऊ। ठीक है, अब है हाउ मेनी पीपल विजिटिंग द वन बिटवीन द ऊटी एंड द भुवनेश्वर, उसके बीच में कितने लोग होंगे, तो आंसर है 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विजिटेड इमीडिएटली बिफोर दिल्ली, तो दिल्ली से पहले कौन सी है, ऊटी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर बिटवीन झांसी एंड अमृतसर, तो कौन सी है, भुवनेश्वर एंड शिमला। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट बिटवीन अमृतसर एंड भुवनेश्वर, कौन सी कंडीशन, देर इज 1 सिटी, नहीं। भुवनेश्वर इज इमीडिएटली अबव, नहीं। द वन हु विजिट अमृतसर इज द पर्सन इमीडिएटली अबव द भुवनेश्वर, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एग्जैक्टली बिटवीन दिल्ली एंड झांसी, ये रहा झांसी, ये रहा दिल्ली, तो कौन कौन सी है, ABS। तो एग्जैक्टली बिटवीन पूछा है तो वो कौन सी हो जाएगी, 95 है ना, एग्जैक्टली बिटवीन अमृतसर एंड शिमला, तो भुवनेश्वर है, बट यहाँ ऑप्शन नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, बिकॉज राइट आंसर है भुवनेश्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आपको लेटर्स अरेंजमेंट है ना, पूछा है ऑल द लेटर्स इन द गिवन वर्ड आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आपको अरेंजमेंट किस तरह का है, NKT, फिर दिया है BEA, उसके बाद दिया है DNU ICN एंड GLP। अब क्या बोल रहे हैं, ऑल द लेटर्स इन द वर्ड आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड आफ्टर ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले तो इसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर देते हैं, TKN हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, रिवर्स में पहले E आ जाएगा, फिर B, फिर A। सिमिलरली यहाँ पे पहले U आएगा, फिर N आएगा, फिर D, फिर N C I, एंड इसमें सबसे पहले P आएगा, L आएगा, फिर G। ये रिवर्स में अरेंज हो गया। अब उसको क्या करना है, लेफ्ट से राइट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले E वाला आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, E, फिर MNOP,
N वाला आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा NIC, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या पूछा है, ME हो गया, N हो गया, उसके बाद P आएगा तो ये बन जाएगा PLG, उसके बाद T आएगा तो ये बन जाएगा TNK, एंड लास्ट में हो जाएगा UND, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड थस फॉर्म्ड, तो सेकेंड से राइट एंड में कौन सा होगा, सो सेकेंड से राइट एंड से सेकेंड, दैट इज TNK, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर in each word every consonant is changed to the previous letter of the English alphabetical series, then how many word will have at least single vowel, कितने में single vowel होगा। करना क्या है, हर कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से चेंज करना है। तो जो NKT है इसके अंदर ये किससे चेंज हो जाएगा, M, K की जगह आ जाएगा J, T की जगह आ जाएगा S। सिमिलरली BEA, B से पहले हो जाएगा A, E से पहले यहाँ पे E तो वॉवल है वो सेम रहेगा, एंड ए भी वॉवल है सेम रहेगा, ठीक है। फिर है DNU, डी से पहले आ जाएगा CM, U एज इट इज रहेगा, ICN, आई तो ऐसे कैसे रहेगा, C से पहले आ जाएगा B, यहाँ आ जाएगा M, एंड है GLP, यहाँ हो जाएगा F, ये होगा K, ये होगा O। अब कितने ऐसे वर्ड है जिसमें एटलीस्ट सिंगल वॉवल है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें है एक वॉवल, इसमें एक वॉवल, इसमें एक वॉवल, इसमें एक वॉवल, FKO है, तो एटलीस्ट 4 ऐसे वर्ड है जिनके अंदर एक एक वॉवल है, ओके। फिर यहाँ पे क्या दिया है, ईच ऑफ द वर्ड इफ यू इंटरचेंज द फर्स्ट लेटर विद द थर्ड देन द फर्स्ट लेटर विद द सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो फर्स्ट लेटर को थर्ड लेटर के साथ चेंज करना है, सबसे पहले वो कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, TKN, ये हो जाएगा AEB, उसके बाद ये हो जाएगा UND, फिर ये हो जाएगा NCI, एंड लास्ट में हो जाएगा PLG, ठीक है। फर्स्ट को थर्ड के साथ एक्सचेंज कर दिया, फिर क्या बोला है, देन द फर्स्ट लेटर विद द सेकंड वन, अब फर्स्ट लेटर को सेकंड के साथ इंटरचेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा KTN, फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरचेंज कर दो तो ये बन जाएगा EAB। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा NUD, फिर ये बन जाएगा K, NUD, ये क्या है ICN, पहले NCI हुआ था, ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा CNI, एंड यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इंटरचेंज होंगे तो LPG। अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, तो अभी इसको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। तो CNI सबसे पहले आएगा, उसके बाद EAB आएगा, उसके बाद KTN आएगा, फिर LPG आएगा, एंड लास्ट में NUD आएगा। अब थर्ड वर्ड फ्रॉम द कहाँ से बताना है, लेफ्ट या राइट, पर कॉमन ही होगा थर्ड वर्ड, तो वो है KTN। तो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NKT। तो रिमेंबर ये क्वेश्चंस दिखते इजी हैं बट टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, एंड थोड़ी सी मिस्टेक आपका नेगेटिव में मार्क्स लेके जा सकती है, तो आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट दिया है, इफ वी इंटरचेंज द सेकंड लेटर विद द थर्ड एंड द फर्स्ट लेटर, सेकंड को पहले थर्ड के साथ एंड देन द फर्स्ट लेटर विद द थर्ड लेटर, हमारा अरेंजमेंट क्या है, NKT, BEA, BNU, फिर है ICN, GLP। पहले सबसे पहले तो क्या करना है, इफ वी इंटरचेंज द सेकंड लेटर विद द थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड को इंटरचेंज करेंगे तो NTK हो जाएगा, BAE हो जाएगा, D एज इट इज रहेगा, UN हो जाएगा, I एज इट इज, NC हो जाएगा, G एज इट इज, PL हो जाएगा। फिर क्या कहे, फर्स्ट लेटर विद द थर्ड लेटर, तो नेक्स्ट बार एक बार और आइटरेशन लगेगा, इसके बाद एक और होगा जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज करेंगे, तो ये क्या होगा KTN, यहाँ पे क्या हो जाएगा EAB, यहाँ पे क्या होगा NUD, ये होगा CNI, एंड ये होगा LPG। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द वैल्यू इफ वी एड ऑल द प्लेसेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड थस फॉर्म्ड। अब जो वर्ड बना है उसमें जो फर्स्ट लेटर है उन सब की पोजिशनल वैल्यू को ऐड करें तो उसका टोटल कितना होगा। तो यहाँ पे K की पोजिशनल वैल्यू होती है 11, E की होती है 5, N की वैल्यू होती है 14, C होता है 3 पे, एंड L की होती है 12। तो 11 प्लस 5 is 16 प्लस 14 is 30 एंड 33 एंड 12 is 45, तो राइट आंसर हो जाएगा D 45। Next, if we add all the letter places value in each of the word, then which of the following word is completely divisible by 9? तो इनमें से 9 से completely divisible कौन सा है। अगर इन सब की वैल्यू को ऐड करें, देखो NKT जब इसका सम करोगे तो ये वैल्यू आएगी 45, B होता है 2, 5 एंड A होता है 1, इन सबको ऐड करोगे तो ये बनेगा 8। सिमिलरली ये 4 एंड इन सबको ऐड करोगे N इज 14 एंड U, तो ये वैल्यू आएगी 39। ICN को ऐड करोगे तो ये होगा 26 एंड इसको ऐड करोगे तो ये होगा 35। नाउ यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है।
तो 9 5 इज 45, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इस केस में राइट आंसर होगा बी एन के टी। ठीक है, तो ये जो अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होते हैं या जो जंबल वर्ड सीरीज होती है, जंबल लेटर सीरीज होती है, इन क्वेश्चंस की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज क्लेरिकल के अंदर आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। एंड बहुत सारे बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तब टेस्ट सीरीज के अंदर या फिर जनरली भी जब पेपर सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि इजी है, हो जाएगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ट्विस्ट होता है एंड ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। ऑलराइट, so these were the 35 questions from the reasoning section and total of 100 questions from this paper. So this was all from our side. Thank you for joining us and stay tuned to our channel.